A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that in the last class we have completed the topic or the chapter that is rural development, right? So the chapter rural development we have already completed in the last class. In today's class we are going to start the new chapter of your Indian economic development, that is employment, growth, informalization and other issues. Okay? So this is your today's topic, employment. So in this chapter what we are going to discuss, that is so we shall start with the basic concepts. So what are the basic concepts of this chapter, right? Next we will start the participation of the people in the employment. So how the people of the economy participate in the employment. Next we will discuss about the distribution of employment. So how the distribution of employment by the gender, by the region wise, as well as by the different sectors. Okay. Next we will start the topic, that is growth and changing structure of the employment. So what is growth and changing structure of the employment? So changing structure of the employment according to sector wise, different sector, and the changing structure of the employment according to status. So we will discuss. Next topic that will start, that is informalization of the Indian workforce. So how the informalization of the Indian workforce has been done. We will start with the formal or the organized sector. Next we will study the informal or unorganized sector. After that, difference between the formal sector and the informal sector, right? Next topic is, that is unemployment. So what is unemployment, we will discuss. Next one is that is types of the unemployment. So what are the different types of the unemployment? That is rural unemployment, urban unemployment, other types of unemployment. Next we will start the topic, that is causes of the increasing unemployment in India. So what are the different causes of increasing unemployment in India, we will discuss. Next one is, that is effect of unemployment in India. So what is the effect of unemployment in India, we will discuss. Next one is effect of unemployment. Yes. Next topic, that is what are the different suggestions to solve the problem of the unemployment. So what are the different suggestions? So in which we will discuss what are the different government policies as well as the programs that is introduced by the government to reduce the problem of the unemployment. So in this chapter we are going to discuss all these topics. So let's get started. So let's start with the introduction part of this chapter. To work is an important aspect of the human life. ठीक है? वर्क करना किसी भी ह्यूमन लाइफ के लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, बिकॉज पीपल आर फॉर दी लिविंग, फॉर दी फुलफिलिंग ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ दी enough amount of money so that there is any individual can fulfill his basic needs. Okay, so people work for earning a living. People work क्यों करते हैं? For earning a living. So it gives us a sense of self worth. ये क्या देता है? Sense देता है कि self worth and enable करता है relate ourselves meaningfully with the others. ठीक है, इससे हम लोग meaningfully others के साथ relate कर सकें. So this enables human resource to contribute to the national income and helps the development of the country by engaging in various economic activities. That is the real meaning of the earning a living. ठीक है, अभी क्या है कि लोगों के पास जॉब होगी. If they have job, so human resources will contribute the national income. Got it? And if there is increase in the national income, so there is increase in the development of a nation. Right?
studying about the working people us to understand the quality and the nature of employment in our country and help us to plan human resources according to the nature of the job opportunities. It helps to analyze contribution to the national income by the different sectors of the economy. It also helps us to address many social issues. अभी ये भी क्या हेल्प करता है कि जो भी इश्यूज़ हैं उनको भी डिस्कस करने में, सच एज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी के, उनको जो चाइल्ड लेबर है वो. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हम लोग यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट. सो दीज कंडीशन वी विल discuss and the kinds of the unemployment, causes of the unemployment. So all these concepts that we are going to discuss in this chapter, right? So firstly we will start with the basic concepts, right? So put down the heading that is basic concepts. We will discuss about the different. First one is that is GDP, gross domestic product, right? Next, economic activity. Third is workers. Fourth one is labor force and workforce. And the last one is that is employment. Employment and the rate of unemployment. So first one is employment and the next one is rate of unemployment. So these all are some basic concepts that we are going to discuss. So firstly we will start with the GDP. Okay. So in simple language we can say that the GDP is the market value of the final goods and services which is produced in an economy during an accounting year, right? GDP क्या है? GDP is the market value of final goods and services. जो भी final goods है उनकी जो value है उसकी market value जो है वो which is produced in an economy, जो किसी भी इकोनॉमी में क्या हुआ प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. किसी भी अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो भी मार्केट वैल्यू है उनको हम लोग बोलते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है. सो इसमें कह रहा है तो यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम हियर दैट द ह्यूमन रिसोर्स इंडल्ज इन द वेरियस टाइप ऑफ वर्क aspects, right? So human resource क्या है? वो different type के work aspects में क्या होते हैं? indulge होते हैं, activities में perform करते हैं. For example, farmer works on the field to produce food grains. Farmers क्या हैं? एक field पे काम करते हैं to produce the food grains. Raw material for the industries and textile mills convert cotton into the cloth. जो textile mills हैं वो क्या करती है? cotton को basically they convert into the cloth. So trucks carry goods and services from one place to another. जो ट्रक होती है वो कैरी करती है उसी गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे. सो मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड दी GDP. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? GDP बोलते हैं. So if the GDP, so ये क्या होता है? GDP is simply the market value of all the final goods and services which is produced
in an economy during an accounting year, right? Next है that is economic activities. Economic activities are the those activities which contribute to the GDP. वो क्या करता है, वो GDP में contribute करता है, ठीक है. So economic activities are those activities in which contribute to the GDP. That means are those activities in which people are engaged to earn something. वो वहाँ पे काम क्यों करते हैं, वहाँ से उनकी क्या होती है, अर्निंग होती है, ठीक है. तो बोलते हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी. वर्कर्स, नेक्स्ट वन इज दैट इज वर्कर्स. सो ऑल दोज पीपल हु आर एंगेज्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो सारे इंडिविजुअल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं. सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दैट इज प्रोडक्शन, consumption and the capital formation. So those people who are engaged in the economic activity, उसको बोलते हैं workers, right? So yes, so in the above example we can say that the farmers, doctors, these all are the workers. So all those who are engaged in the economic activity, वो सारे जो economic activity that is economic activity में engaged हैं, वो क्या होते हैं, वर्कर होते हैं. सो इवन इफ सम ऑफ देम टेम्परली एब्सटेन फ्रॉम द वर्क ड्यू टू इलनेस, इंजरी, फिजिकल डिसेबिलिटी, फेस्टिवल, बैड वेदर, सोशल फंक्शन, दे आर ऑल्सो वर्कर. दैट मीन्स कि अगर कोई इंडिविजुअल उसमें से कुछ टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ से एब्सटेन हो जाता है, वहाँ से विथड्रॉ हो जाता है, वो काम नहीं करता है, कोई भी अगर उसके पास कोई भी प्रॉब्लम आ गई, पर्सनल प्रॉब्लम, इलनेस हो गई है या इंजर्ड हो गया है, तो वो अगर उस टाइम के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो वर्क नहीं कर रहा है, तो वी कांट से दैट ही इज़ नॉट अ वर्कर, ही इज़ ऑल्सो अ वर्कर. सो वर्कर्स में इंक्लूड ऑल दोज हु हेल्प द मेन वर्कर्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. वर्कर्स वो सारे होते हैं जो मेन वर्कर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. सो वर्कर आर पेड बाय द एम्प्लॉयर्स. वर्कर्स को कौन पेड करता है, वर्कर्स आर पेड बाय द एम्प्लॉयर्स. एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, जो द वन हु अपॉइंट द एम्प्लॉयज और द वर्कर्स, दे प्रोवाइड दे गिव देयर वेजेस और सैलरी इन रिटर्न व्हाट दे हैव डन. जो भी वो किए रहते हैं इन रिटर्न उनको क्या करते हैं, पेड करते हैं. एंड दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड आर ऑल्सो वर्कर्स, ठीक है. तो वर्कर्स में आपके दोनों आ जाते हैं, दैट इज वेज एम्प्लॉयड, जो वेज एम्प्लॉय होते हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं. सेल्फ एम्प्लॉय में तो जो खुद को ही क्या किए हैं, जॉब प्रोवाइड किए हैं, और वेज एम्प्लॉय जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है. तो वर्कर क्या हो गया, जो भी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है, वो सारे वर्कर होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ दी वर्कर. वर्कर समझ लिया, अब जो टॉपिक पढ़ने के बंधु है टाइप्स ऑफ वर्कर. Types of workers. So when we talk about the types of workers, so it is divided into two. That is hired worker and self-employed. Self-employed workers. टाइप्स ऑफ वर्कर को जब हम डिवाइड करते हैं तो टू टाइप्स के वर्कर होते हैं, दैट इज हायर्ड वर्कर एंड दी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर. देन हायर्ड वर्कर इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, रेगुलर वर्कर एंड कैजुअल वर्कर. ओके, रेगुलर वर्कर और दी कैजुअल worker. So types of the worker are the hired worker and the self-employed. Worker. Got it? So firstly we will discuss about the who is the hired worker. Hired worker कौन होता है?
आर दी वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड बाय दी अदर्स। जो हायर्ड वर्कर होते हैं वो क्या होते हैं, वो वर्कर होते हैं जो किसी और के थ्रू उनको क्या किया गया है, हायर किया गया है। दे आर एम्प्लॉयड बाय दी अदर्स, उन्होंने उनको किसी और ने क्या किया है, जॉब प्रोवाइड किया है। एंड आर पेड वेजेस और सैलरी इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज, और इन रिटर्न उन्हें क्या है, वेजेस और सैलरी भी दी जाती है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी हायर्ड वर्कर होते हैं उनको हम लोग और क्या बोलते हैं, वेज एम्प्लॉय, और ऐसे वर्कर्स को हम लोग वेज एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो दे रिसीव्स वेजेस फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज, उन्हें इन रिटर्न क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। सो डॉक्टर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट और द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, दे गेट दी सैलरी, राइट। सो हायर्ड वर्कर आर ऑफ टू टाइप्स। हायर्ड वर्कर क्या है, जो किसी और के थ्रू एम्प्लॉयड होते हैं, इन रिटर्न उनको क्या मिलता है, उनको सैलरी मिलता है। अब हायर्ड वर्कर के भी टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज रेगुलर वर्कर एंड द सेकेंड वन इज कैजुअल वर्कर। सो रेगुलर वर्कर वो वर्कर होते हैं जो परमानेंट बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, दे आर परमानेंट और रेगुलर। ठीक है, वो परमानेंट और रेगुलर होते हैं। एंड दे हैव ऑल्सो द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, राइट। सो रेगुलर वर्कर्स आर हायर्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस बाय द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स उनको परमानेंट बेसिस पे हायर करता है। दे गेट दी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलती है। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स इन अ स्कूल, बस कंडक्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सेट्रा। एंड दीज अकाउंट फॉर अर्निंग नियरली 18% ऑफ द इंडियाज वर्कफोर्स। इंडिया के वर्कफोर्स में अराउंड 18% लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, रेगुलर वर्कर हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है दैट इज कैजुअल वर्कर। So who is the casual worker? So casual worker, they are not hired on a permanent or the regular basis. ये क्या होते हैं? They are not permanent or regular. They also do not have the social benefits. Do not have social सिक्योरिटी बेनिफिट्स, उनको किसी भी तरह की कोई भी सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलती है। एंड फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबरर, तो ये सारे क्या हैं, जैसे लेबरर्स हो गए, दे आर इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन एरिया, सो दीज ऑल आर दी कैजुअल वर्कर। तो अराउंड 30% वर्कफोर्स का पीपल आर इंगेज इन द कैजुअल वर्कर एंड 18% पीपल आर इंगेज इन दी of the total workforce are engaged in the regular worker. They all are the regular worker, right? So the next one is that is self-employed worker. So who is the self-employed? So these are the workers who use their own resources. ये क्या होते हैं? ये अपने uses their own resources, वो अपने ही resources को क्या करते हैं? यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी उनको प्रोवाइडेड है, जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, वट एवर द डिफरेंट फैक्टर्स दे हैव, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे यूज देयर ओन। वो अपने ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हैं? यूज करते हैं। सो these are the workers who use their own resources, अपने resources को यूज़ करते हैं to earn their living, अपनी living को earn करने के लिए। So these are the workers who own and operate an enterprises to earn their livelihood. ये वो वर्कर है जो अपने ही enterprises को ऑपरेट करते हैं उनको for their livelihood. So in other words, they are not employed by the others. इनको कोई और employ नहीं करता है। They provide job to themselves on their own. वो अपने आप को ही क्या करते हैं? जॉब देते हैं। So about 52% of the workforce in India belongs to this category.
52% people are engaged or belongs to the this category, that means self-employed workers. So self-employment is a major source of the living in India. तो इंडिया में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो मेजर सोर्स है. फॉर एग्जांपल शॉपकीपर, बिजनेसमैन, अ डॉक्टर रनिंग हिज ओन क्लिनिक, सीमेंट शॉप ओनर्स एक्सेट्रा, दीज ऑल आर दी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर. दैट मीन्स दे एम्प्लॉय देयर ओन. तब वो अपने आप को ही क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज दैट इज लेबर फोर्स एंड द वर्क फोर्स. दिस वन इज दी वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स ना. लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स. फोर्थ, लेबर फोर्स एंड वर्क. ओके. So labor force. So it includes all those labor force में कौन आता है? All those who are working and though not working but are seeking work. इसमें सबसे पहले आते हैं those who are working, जो काम कर रहे हैं, and as well as the and though not working but they are seeking for the job. एक तो सबसे पहला वन those who are working, and second those who are not working but seeking for the job. वो काम तो नहीं कर रहे हैं बट वो जॉब को क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं. ठीक है. So the labor force includes all the person in age group between 15 years to 16 years. ठीक है. इसमें वो सारे आते हैं जो 15 years से 16 years के बीच में हो. are willing and available to work, वो will भी करते हैं, as well as they are available to work, वो काम करना चाहते हैं बट काम उनको मिला नहीं. ठीक है. सो लेबर फोर्स में क्या नहीं आता है, लेबर फोर्स doesn't include, इसमें सबसे पहला आ गया below the age of 15 years and above the age of 60 years. सेकेंड हो गया हैंडीकैप्ड पर्सन. ठीक है. जो भी हैंडीकैप्ड दैट दे आर नॉट एबल टू डू दी वर्क, वो भी क्या होंगे इसमें इंक्लूड होंगे. एंड द थर्ड वन इज दोज हु आर नॉट विलिंग एंड नॉट अवेलेबल और वर्क. ठीक है. तो इसमें कौन कौन आ गया, इसमें आ गया कि चिल्ड्रेन बिलो दी 15 ईयर्स ऑफ एज, जो कि 15 ईयर्स से नीचे हैं, बोथ कभी भी आपके लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं होंगे. एंड द ओल्ड पीपल अबव दी 60 ईयर्स ऑफ एज, जो 60 ईयर्स से अबव है वो नहीं इंक्लूड होंगे. एंड हैंडीकैप्ड पर्सन, जो भी हैंडीकैप्ड है, जो फिजिकली फिट नहीं है, दैट person will also be not included in the labor force. And the last one is those who are not willing and not available for the job or the work. जो अवेलेबल भी नहीं है और उसका मतलब विल भी नहीं है काम करने का, वो सारे क्या आते हैं, लेबर फोर्स में इंक्लूड होते हैं. ठीक है. तो लेबर फोर्स क्या होगा, लेबर फोर्स दोज हु आर वर्किंग को भी लेंगे, एंड दोज हु आर नॉट वर्किंग, वो वर्क नहीं कर रहे हैं बट दे आर एबल एंड वांट टू डू वर्क. So that is called the labor force. Next one is that is workforce.
वर्क फोर्स। So workforce में those people are included, that people they are working. So in this only that people are included, those who are working, जो वर्किंग में है, जो काम कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, वर्कफोर्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो इंक्लूड्स ऑल दोज हु आर एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एम्प्लॉयड हैं, सो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग। सो वर्कफोर्स में इंक्लूड कौन होता है, पीपल हु आर इंगेज इन दी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पीपल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हैं, एंड इन अदर वर्ड टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, वर्कफोर्स में इंक्लूड करते हैं। और वर्कफोर्स में किसे इंक्लूड नहीं करते हैं, वो जो एबल नहीं है और दे आर नॉट विलिंग टू डू वर्क, वो एबल भी नहीं है एंड दे ऑल्सो डोंट वांट टू डू दी वर्क, so those people are included in the workforce. Next one is that is relation between workforce and the labor force. Relation. So relation between labor force is equal to workforce plus unemployed person. अब unemployed person में वो आएंगे those who are willing. ठीक है, और वर्कफोर्स में कौन इंक्लूड होगा, those who are working. Got it? Next है, अगर हम लोग को you have to find out the unemployed person, की इकोनॉमी में कितने unemployed person हैं, so is equal to workforce minus labor force minus workforce. तो इन दोनों के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। फिफ्थ है एम्प्लॉयमेंट। Okay, employment means simply it is an activity which enable a person to, ठीक है, इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या, सॉरी एम्प्लॉयमेंट क्या है कि वो एक्टिविटी जो किसी भी इंडिविजुअल को एबल करता है कि वो वर्क करे एंड दे आर पेड फॉर दैट वर्क। सो व्हेन अंडरटेकिंग अ पर्सन रेंडर्स हिज सर्विस एंड गेट paid in return, so if all those who are working, willing and able to work are able at the existing wage rate, जो भी इंडिविजुअल एबल है एंड दे आर ऑल्सो बॉर्न टू विलिंग टू डू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट। और व्हेन वी टॉक अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, सो दोज हु आर नॉट गेट द वर्क, उन्हें काम नहीं मिला है, सो दे आर कॉल्ड एज द अनएम्प्लॉयमेंट। तो द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में जो नेचर है एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इट इज़ मल्टी फेसेटेड। मतलब कि अभी क्या है कि कुछ पीपल ऐसे हैं, पर्सन ऐसे हैं जो उनको होल ईयर क्या है जॉब रहती है, बट कुछ पर्सन ऐसे हैं दे फॉर दी ऑफ सीजन में जॉब नहीं रहती है, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो ऑफ दी टू टाइप्स। एक तो होता है वेज एम्प्लॉयमेंट, जिन्हें जो किसी और के अंडर काम करते हैं, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अपने खुद को ही क्या किए हैं, एम्प्लॉय। नेक्स्ट का है दैट इज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Rate of unemployment. So when we have to calculate the rate of unemployment, so how to calculate rate of is equal to number of person unemployed divided by labor force
into 100, so we get the rate of unemployment, right? So these all are the 6 basic concepts of the employment. So first one is GDP, second one is economic activity, third one is workers, fourth one is labor force and workforce, fifth one is employment, and the sixth one is rate of unemployment. So this is all about your duties. Thank you.